हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important topic arrive here, a concept of isostasis. There is a most important isostasis here. The term of isostasis is derived from to isotosis, a word, a Greek language meaning to state or beginning of balance. You already know and must be has seen that is a mountain have a many peak and the relatively greater heights. And similarly, the plateau and the plain have a flat surface and they have a moderate and lower height respectively. And the contrast is the oceans and the belt there is a trenches has a greater depth. There is a great difference of the height among these is a features, and you also known as that the earth is a rotating with the keeping the perfect balance among it is a various features, and thus our earth is a considered to be a isostatic equilibriums. There is a most important here, but here also important here example. The example is the most important. Suppose you are holding one stick each your both hand vertically with the varying of the height, say 5 and other 15, and you are moving in the particular direction. Do you have any difficult maintenance of balance in the congruence with your body as well as to stick together? Definitely, the smaller sticks will be easy to the make a balance than to longer one. It is just because of their center of gravity. The center of gravity will a smaller sticks will be narrowed to your holding hand and compressions to be longer stick. In the same way, a smaller surface features like a plane and a more stable than the a tall mountain. First topic here arrives there isostatics balance means a view of the air. There is a most important here. Early geologists is a consider the density of different column, a plan, plateau, mountain, etc. to be that same. Another propose their idea of informal density with a varying of thickness. We know that the upper crust of the earth is made up to the lighter materials. There is the most important here. We know that is the upper crust of the earth is the made of the lighter material. In this is a layer of silica and the aluminum are found to the abundance, and it is known as the cell. There is already have discussed. It is a less denser than to the lower one. The early assumed to that is a silicaceous crust is a floating over to the sima means silica and magnesium and the lower dense layer. The crustal layer is the informal is a term of density with a varying of length of columns. Therefore, those columns are projecting down into the atmosphere depend upon to the proportion of their columns, and it is due to this is the reason that the root has a developed or the sima has been to displaced from below. To prove this concept, I early took example of wooden block of various size and immersed them into the water. There is a figure is also important for see the next. All the block are the same density and they get immersed to different in a proportion to their size. In the same way of higher a feature with a great higher seam on the surface of the earth have a deeper roots and where is short in length as a shorter roots is bent there. It is the concept of root which is standing there higher evolutions. He is of the opinion that there is a land mass and the floating like a boat is the substratum in the magnetical astrosphere. According to this concept, the roots bend the Mount Everest is would be a 8848x and the 8. There is a mean to the 70,784. There is 70,784 meters below their sea level. On this base, yearly has been the criticized and that is the root is not possible to be at such a great depth because the root is the materials will be melt due to higher temperature found at that depth. Here show the most important diagram here illustrations of the concept of yearly isostasis. There is the most important here the water level and the water level wooden to the piece of uniformal density, and the second here a condition of the isostasis based on the elements and the as hormone. There is the most important the density is here 2.7 and the root also is
densities are present, and potential platform also present on planned mountains, plateaus, and sea level. There sea is a density as a 3.0. There is a most important diagram show in there. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भू संतुलन की अवधारणा। देखिए, भू संतुलन की अवधारणा यानी आइसोस्टेसिस क्या होता है, इसका मतलब आइसोस्टेटिस जो है भू संतुलन शब्द है, ठीक है। और भू संतुलन का मतलब ही होता है कि धरती को ऐसा बनाया जाए जो कि एक संतुलन के रूप में जो है मान्यता मिली। तो यही बात यहाँ भू संतुलन की अवधारणा के अंतर्गत आया है। आइसोस्टेसिस जो होती है, भू संतुलन शब्द जो है ग्रीक भाषा के जो है आइसोस्टेसिस से लिया गया है। यानी आप समझ सकते हो कि भू आइसोस्टेसिस जो है आइसोटोसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संतुलन की स्थिति, कि संतुलन कैसे किया जाए। आप जानते हैं और आपने देखा भी होगा कि पर्वत के बहुत शिखर से होते हैं और उनकी ऊंचाई भी अधिक होती है, और इसी तरह से जो है पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है और मैदान समतल होते हैं, और पठारों की ऊंचाई सामान्य जबकि मैदानों की बहुत कम होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा भी है और जाना भी है कि अगर हम पर्वतों की बात करें तो काफ़ी ऊंची होती है, शिखर होती है, लेकिन मैदान जो होती है समतल होती है। अगर पठार की बात करें तो थोड़ा सपाट होता है। तो पठारों की ऊंचाई सामान्यतः जबकि मैदानों की बहुत कम होती है। इसके विपरीत समुद्री तलों और खाइयों की गहराई बहुत अधिक होती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि समुद्र के तले जो होती है काफ़ी गहरी होती है और खाइयाँ भी बहुत बड़ी बड़ी गहरी होती है। इन सब उच्च वाचक ऊंचाई में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। और आप भी जानते भी हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण सदैव करती ही रहती है और उसने अपने विविध लक्षणों के संतुलन बना भी रखा है। अंततः हमारी पृथ्वी की समस्थिति की जो है अवस्थाओं को माना जाता है, यानी पृथ्वी स्वयं ही अपने आप को बैलेंस करना जानती है, क्योंकि इसका एक फिनोमेनन होती है। जैसे हमारा शरीर जो है हर चीज़ों से पहले लड़ती है, अगर लड़ने में सक्षम नहीं होती है तब जाके ये हार मान जाती है। उसके पश्चात अगर हम इस बात को उदाहरण से समझे तो ये काफ़ी आसान रहेगा। मान लीजिए आप अपने दोनों हाथों में विभिन्न ऊंचाई जैसे कि 5 और 15 इंच की बाले लंबत टुकड़े सीधे पकड़े हुए एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं। यानी एक 5 मीटर है और एक के 15 इंच है, यानी 5 इंच और 15 इंच की कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक है, और लंबत टुकड़े को सीधे पकड़े हुए आप निश्चित दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या आपको अपने शरीर और उन दोनों टुकड़ों के सामने सामंजस्य बिठाने में कई कठिनाइयाँ होती है? तो आप निश्चित रूप से लंबे टुकड़े की अपेक्षा छोटे टुकड़े को जो है साथ संतुलन बनाए रखना आसान होगा। ऐसा गुरुत्व केंद्र के कारण ही होता है, यानी छोटे टुकड़े को आप बहुत आसानी से जो है बैलेंस कर पाओगे, लेकिन बड़े टुकड़ों को जो है बैलेंस करना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। चाहे जितने मर्जी इंच हो, इसका कोई मतलब नहीं। अगर कोई डंडा आप सिंपली ले लो, ठीक है, एक कोई अगर छोटा होगा तो उसको बैलेंस करना आसान होता है, लेकिन जो बड़ा होता है उसको बैलेंस करना आपके लिए संभव नहीं रहता है। तो यही बात जो है यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा गुरुत्व केंद्र के कारण होता है। तो ये आप याद रखना कि ऐसा जो होता है गुरुत्व केंद्र के कारण होता है, और लंबे टुकड़े की तुलना में छोटे टुकड़े के साथ गुरुत्व केंद्र आपके हाथ के अधिक पास होगा। यानी अगर छोटा टुकड़ा होगा वो बहुत काफ़ी पास होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण कम लगेंगे, लेकिन बड़े टुकड़े में गुरुत्वाकर्षण अधिक लगेगा तो उसको बैलेंस करना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। इसी प्रकार से छोटे धरातली लक्षण जैसे मैदानी ऊंचे पर्वत की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। तो यही बात दर्शाना जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, क्योंकि जरूरी भी है कि धरातली लक्षण जैसे मैदान ऊंचे पर्वत की तुलना में अधिक स्थिर होंगे। अगला टॉपिक आया है भू संतुलन, यानी भू संतुलन है किसके रिगार्डिंग? एवरेज के विचार के अनुसार। तो एवरेज जो था उसका क्या विचारधारा था और उसने भू के संतुलन के विषय में क्या अपने विचारधारा रखे थे। तो देखा जाए भूवैज्ञानिक एवरेज ने विभिन्न स्तंभों जैसे पर्वत, पठार और मैदान आदि के घनत्व को एक जैसा माना था। यानी इसके जो एक्सपेरिमेंट थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इन्होंने एक बात पे साफ जोर दिया था कि जब पर्वत, पठार और मैदान इनके घनत्व जो होंगे एक जैसे होंगे। अंततः उसने विभिन्न मोटाइयों के साथ एक सामान्य घनत्व के विचार को काफ़ी सुलझाया था। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत हल्के पदार्थ से बने होते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत जो होते हैं हल्के पदार्थ से बने होते हैं, और इस परत में जो है सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको हम दूसरे चैप्टर में भी किए थे। अगर नहीं आपने देखा है तो उसको देख लेना कि कौन कौन से जो है एलिमेंट से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो ये बहुत काफ़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात दिया था कि सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे जो है सियाल्स के नाम से भी जाना जाता है। और यानी सियाल्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी सिलिका को एक वर्ड लिया जाता है और यल का जो है 2 अक्षर लिया जाता है। तो इस तरह जो है सियाल्स नाम दिया गया था, और ये नीचे की परत से कम घनत्व वाली होती है। एरिस ने माना कि सियासिस से बनी भूपट्टी सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम
अब सीमा का मतलब भी यही होता है, सिलिका और मैग्नीशियम नीचे की अधिक घनत्व वाली परत के रूप में थी, ठीक है, यानी ऊपर की तैर रही थी, और भूपट्टी के परत का घनत्व एक समान था, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग थी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भूपट्टी की परत का घनत्व एक सामान्य थी, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग थी। इसलिए ये स्तंभ अपनी ऊंचाई के अनुपात में जो है दुर्बलता मंडल में धंसे हुए थे, ठीक है, यानी ये जो था दुर्बलता के कारण ये जो है अपने क्षेत्र में धंसे हुए थे, और इसी कारणवश इसकी जड़ें विकसित हो गई अथवा नीचे गहराई में जो है सीमा विस्थापित हो गई। तो ये दोनों बात काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी जरूरी भी थी। इसी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए एरिस ने विभिन्न आकारों के लकड़ियों के टुकड़े लिए और इन टुकड़ों को उन्होंने पानी में डुबो दिया। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें समझने को मिला, ठीक है। छोटे टुकड़े के लिया, उन्हें पानी में डुबाया दिया गया। सभी टुकड़े एक जैसे घनत्व के हैं और ये अपने आकार के अनुपात में विभिन्न विभिन्न गहराई तक पानी में डूबते हैं। इसी प्रकार के पृथ्वी के धरातल पर अधिक ऊंचाई वाले भूलक्षण उसी अनुपात में अधिक गहराई तक धंसे होते हैं, जबकि कम ऊंचाई वाले क्षणों को जो है जड़ें छोटी होती है। यह अधिक गहराई तक धंसी हुई जड़ें ही वो हैं जो अधिक ऊंचाई वाले भूभागों को स्थिर रखते हुए हैं। उनका विचार था कि भूभाग एक नाव की तरह यानी मैग्मा वाली दुर्बलता मंडल के अंततः सतह तक तैर रहे होते हैं, और इस अवधारणा के अनुसार जो है माउंट एवरेस्ट की जो जड़ है समुद्री तल से जो है 70 से लेकर 784 मीटर नीचे होनी चाहिए। तो ये उन्होंने अनुमान लगाया था, और इसी बेस पे उन्होंने क्या किया था 8848 इंटू 8 करके दिखा था, जिसमें 70,784 आया था। और ये एरिस की इसी बात को लेकर जो है आलोचना भी हुई है कि जड़ का इतनी गहराई पर रहना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर विद्यमान जो है उच्च तापमान जड़ के पदार्थों को पिघला देता है। हमने पढ़ा भी था जो है दूसरे चैप्टर में कि जितने गहराई में आप जाइएगा वहाँ उतनी ही जो है तापमान अधिक होती है, ठीक है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर विद्यमान उच्च तापमान जो है जड़ को पदार्थों को जो पिघला देगा और गला देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए जो है इतने नीचे तक जो है जड़ें नहीं जा पाती है। इसी बात को शो करने के लिए यहाँ पर जो है एरिस ने भू संतुलन की विचार का चित्र के द्वारा प्रकट करने की कोशिश किया था। आप देख सकते हो कि जल स्तर दिखाई गई है, और जल स्तर के बाद जो है सामान्य घनत्व वाली लकड़ियों के टुकड़े को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये लकड़ी देख सकते हो कैसे किस बेस पे जो है सीढ़ीनुमा जो है यहाँ पर अरेंजमेंट की गई है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था एरिस की, ठीक है। दूसरे डायग्राम्स में भू संतुलन की स्थिति में एस होम्स और बीडीएल हेम्स पर आधारित थे, जिन्होंने दूसरे साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें भी आप देख सकते हो कि पठार, पर्वत, मैदान, यानी ये घनत्व जो है 2.7 दर्शाया गया था, और मध्य द्वीपीय जो होती है चबूतरा जिसको यहाँ पर दिखाया गया है, और जल स्तर भी आपको दिख रहा है, सागर निचले सतह पे दिख रहा है, और जहाँ सीमा जो है, और इसका जड़ें जो है इसी बेस तक यहाँ तो जाती है। तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ जो है दोनों एक्सपेरिमेंट की तुलना करने के लिए पर्याप्त